تو عزیزان مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا، اس نے بادشاہ بنتے ہی پہلا آرڈر مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ کے نام یہ جاری کیا کہ تم عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین سے بیعت لو، میرے باپ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا امام حسین سے سب سے پہلے بیعت لو، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جب تک موقع نہیں پائیں گے تب تک کچھ نہیں کریں گے، اور عبداللہ بن عمر مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، ان سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن امام حسین خود بھی شیر ہیں اور وہ شیر کے بیٹے ہیں، سب سے پہلے ان سے بیعت لو۔ جب حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس میں یزید کا یہ خط پہنچا ہے، اس نے خط دیکھا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب وہ حیرت میں تھا، اس کو پتا تھا امام حسین یزید کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، اس نے مشورہ کرنے کے لیے مروان کو بلایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جیسا ہوگا ویسا ہی تو مشورہ دے گا، اور مروان مشورہ دے گا تو کیسا دے گا؟ مروان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، مروان جب پیدا ہوا تھا، اس کو تہنیک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، جس کو میرے آقا نے گرگٹ کہا ہو، جس کے باپ کو گرگٹ کہا ہو، وہ کیسا مشورہ دے گا؟ اور ایک روایت کے اندر آتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مروان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، اس پر لعنت فرمائی تھی، تو جیسے مروان کے باپ پر لعنت پڑی ویسے ہی مروان پشت میں تھا، وہ بھی لعنت سے حصہ پایا تھا۔ جو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہو، جو لعنت کا مستحق ہوا ہو، وہ مشورہ کیسا دے گا؟ ولید بن عقبہ کو مروان نے یہ مشورہ دیا، امام حسین کو بلاؤ اور یزید کے نام پر بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو۔ ولید بن عقبہ کا پیغام حضرت امام حسین کے پاس میں پہنچا، حضرت امام حسین سمجھ گئے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، مجھے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے کچھ جانثاروں کو ساتھ میں لیا اور باہر گورنر ہاؤس کے باہر ان کو ٹھہرا دیا کہ تم یہیں پر رک جاؤ، اگر میری آواز تیز ہونے لگے تو تم سب اندر آ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئے، ولید بن عقبہ نے ادب کیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر امام حسین کو سنائی۔ امام حسین نے کلمہ ترجیع پڑھا، اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا، اے امام حسین، یزید کا خط آیا ہے، اس نے اپنے نام پر آپ سے بیعت لینے کے لیے کہا ہے۔ میرے امام نے کہا، مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا ہے، میں ہرگز اس طرح یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کے امام حسین ولید بن عقبہ کے دربار سے جب نکلنے لگے، مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، اے حاکم مدینہ، امام حسین اگر آج نکل کر کے باہر چلے گئے دوبارہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے، ان سے بیعت لے لو، اگر یہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو۔ میرے امام جا رہے تھے، دروازے سے واپس پلٹ کر کے آئے، کہا، مروان تو کیا مجھے قتل کرے گا؟ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تو حسین کا بال بھی بیکا کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین دربار سے نکل گئے۔ جب مروان نے امام حسین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو حاکم مدینہ سے کہا، تو اگر ان کو قتل کر دیتا تو ٹھیک ہوتا، اب یہ تیرے قابو میں نہ آئیں گے۔ ولید بن عقبہ نے کہا، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں، ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے، تب بھی میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا قطعاً گوارا نہیں کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ چلے گئے اور آپ سمجھ گئے کہ یزید مجھے بیعت کے لیے مجبور کرے گا اور میں بیعت کروں گا نہیں، مدینہ کے اندر فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، میرے آقا کے مقدس شہر کے اندر خون ریزی اچھی بات نہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ و اہل بیت سے کہا، سامان تیار کر لو، اب مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ شعبان المعظم کی 4 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، رات کا وقت ہوا، ولید بن عقبہ حاکم مدینہ نے دوبارہ امام حسین کو طلب فرمایا۔ امام حسین نے کہا، ابھی رات کے وقت میں دربار میں نہیں آ سکتا ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا، رات کا وقت ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے۔ امام حسین اور آپ کے رفقا، آپ کے اہل خانہ جاگ رہے، سامان باندھا جا رہا ہے،
पूरा काफिला तैयार हो रहा है, मदीना छोड़ने की बारी आई है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहले खाना ने रात के सन्नाटे में सामान बांध लिया है और सवारी के लिए सवारियों को तैयार किया जा रहा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकलते वक्त में जन्नतुल बकी में गए, हजरत फातिमा के रोजे पे गए होंगे, हजरत इमाम हसन के रोजे पे गए होंगे, अपने मामू हजरत इब्राहिम के रोजे पे गए होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने गए। अब इमाम हुसैन ने कहां कहां हाजिरी दी और क्या क्या कैफियत हुई वो तो रिवायतों में नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये विजदान कहता है इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ करके जा रहे होंगे और अपनी मुकद्दस माँ हजरत फातिमा के मज़ार पे गए होंगे तो कहा होगा अम्मी जान मुझे मदीना प्यारा है, लेकिन आज मुझे मजबूरन मदीना छोड़ना पड़ रहा है। इमाम हसन से कहा होगा आए भाई आखिरी सलाम के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मामू हजरत इब्राहिम की बारगाह में सलामी पेश की होगी और उसके बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे पर इमाम हुसैन हाजिर हुए। आप तसव्वुर करें इमाम हुसैन जब सरकार के रोजे पे गए होंगे, इमाम हुसैन के दिल की क्या कैफियत होगी उसको कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जब 8 दिन का हाजी जब मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजार करके जब वापिस अपने वतन की तरफ पलटता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके हाथों में कपकपी होती है और कदमों के अंदर लर्जा होता है, और मदीने की सरजमीन को छोड़ करके 8 दिन का हाजी जब आता है उसकी कैफियत बदल जाती है। जिस इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होकर मदीना में अपना बचपन गुजारा, सैयदा खातून जन्नत के मकान में जिनकी किलकारियां गूंजी, जिस इमाम ने मदीना मुनव्वरा की गलियों में नाना की उंगलियां पकड़ करके चलना सीखा, नाना की गोद में और नाना के साथ में जिंदगी गुजारी, उस हुसैन का सब कुछ तो मदीने में था। आज इमाम हुसैन का जब मदीना छूट रहा था, इमाम हुसैन के दिल की क्या कैफियत होगी। अल्लाह अकबर, रात का सन्नाटा है, लरसते कांपते हाथों पांव से इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पलटे होंगे नाना जान के मज़ार से, इमाम हुसैन की कैफियत तारीख में क्या है उसे कोई अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पलट करके आते हैं, शाबानुल मुअज्जम की 4 तारीख है, सारे काफिले वाले तैयार हो चुके हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सवारियों पे सवार होते हैं। एक रात वो भी थी जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मकान का घेराव कर लिया गया था तलवारों के जरिए, और रात में मेरे आका तलवारों के बीच में से निकलकर मक्का छोड़ के मदीना आ रहे थे। आज एक रात वो है मदीने के अंदर तलवारें निकलने वाली है, इमाम हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का जा रहे हैं। उस रात में मेरे आका जब मक्का से मदीना आ रहे थे तो मदीना इंतजार कर रहा था। आज हुसैन मदीना से जब मक्का जा रहे तो मक्का इंतजार कर रहा है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से निकल रहे थे, खाने काबा देख रहा था, मताफ देख रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम को हतीम देख रहा था, सफा मरवा उबर करके हुजूर का दीदार कर रहे थे, गारे सौर नजारा कर रहा था, गारे हिरा सर उठा के देख रहा था। आज इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना छोड़ के जा रहे, मदीने की पहाड़ियां इमाम हुसैन को सर उठा के देख रही है, दरख्त इमाम हुसैन का आखिरी नजारा कर रहे हैं, खजूरों के बागात आज इमाम हुसैन का आखिरी दीदार कर रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि शहादत ने अपना घूंघट उठा करके इमाम को अपना चेहरा दिखा दिया है और मेरे इमाम का ये किरदार बता रहा है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे हैं। पता चल गया था मक्के वालों को नबी का नवासा आ रहा है, सब इस्तकबाल के लिए निकल आए। एक दिन वो था हुजूर मक्का से मदीना आए थे, मदीने वालों ने मदीने से बाहर निकल करके इस्तकबाल किया था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। उस वक्त बच्चों ने तराना गाया था, सहाबा ने नारा लगाया था जा रसूलुल्लाह, जा मोहम्मद, जा रसूलुल्लाह। और आज हुसैन जब मक्का जा रहे, आज मक्के वाले नारा लगा रहे, मक्के वाले इस्तकबाल कर रहे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का में पहुंचे, मेरे इमाम ने किसी से बैत नहीं ली। मेरे
इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए। इमाम हुसैन अमन व अमान चाहते थे, इमाम हुसैन अदल व इंसाफ चाहते थे, इमाम हुसैन इस्लामी हुकूमत के अंदर किसी तरह का इंतशार नहीं चाहते थे। लेकिन जब इमाम हुसैन मदीना से मक्का पहुंचे, कूफे वालों को पता चल गया, कूफा के अंदर सुलेमान मुहिब अहले बैत के घर पे सब मुहिबान अहले बैत की मीटिंग हुई और सब ने कहा कि यजीद खलीफा बन गया, बादशाह बन गया है और हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है। जब हजरत अमीर माविया जिंदा थे, हमने इमाम हुसैन से कहा था कूफा आ जाओ, हम आपकी बैत करना चाहते। इमाम हुसैन ने मना कर दिया था। अब तो हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद बादशाह बन गया है। अब बताओ, अगर तुम लोग पक्का वादा करते हो तो इमाम हुसैन को खत लिख करके बुलाया जाए। सब ने कहा हम जान माल सब कुछ कुर्बान करेंगे इमाम हुसैन के नाम पर। इमाम हुसैन को आप बुलाइए कूफा के अंदर। सुलेमान मुहिब अहले बैत के घर पे सब लोगों ने मिल करके इमाम हुसैन के नाम खत लिखा। आई इमाम, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद बादशाह बन गया। यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर नौमान बिन बशीर है। हम उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, उसके पीछे ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। आप आ जाएं, हम सब के सब आपके हाथों पर बैत करेंगे। आई इमाम, अगर आप नहीं आए हम मजबूर हो जाएंगे यजीद की बैत करने पर। और फिर इमाम हुसैन की बारगाह में कूफा से मक्कतुल मुकर्रमा में खत पहुंचता है। एक चिट्ठी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, खतों का ताता बन गया। 2 दिन के अंदर 52 खत आ गए। एक रिवायत में आता है चंद दिनों के अंदर 150 चिट्ठियां मकूफा वालों ने मक्कतुल मुकर्रमा में इमाम हुसैन के पास लिख दी। वादे किए गए, मोहब्बत का इजहार किया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, हुजूर आप आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब इतने खत आए तो अब मेरे इमाम ने मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा जाने की तैयारी की। सहाबा आ गए, का हुसैन, उन्होंने आपके वालिद हजरत मौला अली के साथ वफा नहीं की, आपके भाई हजरत इमाम हसन के साथ वफा नहीं की। उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें हुकूमत के साथ हैं। आप न जाएं, आप न जाएं। मेरे इमाम ने कहा जब वो मुझे बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा वो यजीद की बैत कर लेंगे, कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। अब इमाम हुसैन के सामने 2 रास्ता है। अगर जाते हैं तो ये रोक रहे हैं, सहाबा रोक रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रोक रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर रोक रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रोक रहे हैं, सहाबा रोक रहे हैं। अब रुकना भी जरूरी है, लेकिन अगर रुक जाते हैं तो दिल के अंदर ये खटका है, अगर मैं नहीं गया, उन्होंने यजीद की बैत कर ली, कल मैदान क़यामत में खुदा की बारगाह में वो अर्ज करेंगे मौला हमने तो तेरे नबी के नवासे को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए, हम मजबूर हो गए, हमने मजबूर होकर फासिक व फाजिर की बैत कर ली, तो मैं खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। हजरत इमाम हुसैन के सामने 2 रास्ते हैं, जाएं कि न जाएं। जाते हैं तो सहाबा रोकते हैं, न जाएं तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मेरे इमाम ने इन दोनों के बीच वाला एक रास्ता निकाला। अपने भाई, अपने रिश्ते के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और बुला करके कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, ऐसी पोजीशन बन चुकी है, सहाबा रोक रहे न जाऊं, कूफा वाले बुला रहे, अब मैं क्या करूं। मैंने ये इरादा बनाया है, पहले आप जाएं, मेरे नाइब बन करके जाएं, मेरे कासिद बन करके जाएं, कूफा वालों के हालात का जायजा लें। अगर हालात अच्छे हों मुझे खत लिख करके बताएं तो फिर मैं आ जाऊंगा। अगर हालात अच्छे होंगे मैं जाऊंगा, फिर सहाबा रोक नहीं पाएंगे, वो समझ जाएंगे हालात अच्छे हैं। और अगर हालात अच्छे नहीं होंगे तो वैसे मैं खुद ही रुक जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा से निकल रहे हैं कूफा की तरफ। जब आप कूफा में पहुंचे, मुहिब अहले बैत मुख्तार के घर पर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने क़याम किया। जब कूफा वालों को पता चला इमाम हुसैन के कासिद नाइब उनके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील आए, लोगों का तांता बन गया, बैत करने के लिए आ रहे हैं। 1000, 2000, 3000, थोड़े ही दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर 12000 कूफा के लोगों ने बैत कर ली। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा लोग अदब कर रहे हैं और इतनी ज्यादा मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। जब मेरे साथ इतनी मोहब्बत है, नवासा रसूल आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फौरन इमाम हुसैन को खत लिख दिया कूफा के हालात अच्छे हैं, हजारों लोगों ने बैत कर ली है, अभी भी बैत का सिलसिला जारी है, इमाम आप आ जाएं या आपके नाम पर जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार है। हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत
मक्कतुल मुकर्रमा इमाम हुसैन की तरफ रवाना हुआ। इधर कूफा के अंदर हालात ने अंगड़ाई ली। कूफा के हाकिम नोमान बिन बशीर ने सारे कूफा वालों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा, लोगों तुम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बैत कर रहे हो, अगर यजीद को पता चल गया तो वो फिर तुमसे इंतकाम लेगा, लिहाजा तुम ऐसा मत करो। जब नोमान बिन बशीर ने यह खुतबा दिया, एक यजीदी खड़ा होकर के कहता है, नरमी से काम नहीं चलेगा, सख्ती करो। नोमान बिन बशीर ने कहा, मेरा नरमी करना हक के साथ में यह सख्ती करने से ज्यादा बेहतर है। अब मजमा बर्खास्त हुआ और फिर एक के बाद एक कई यजीदियों ने यजीद को जाकर के खत लिख दिया कि कूफा के हालात बिगड़ चुके हैं, अगर जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो कूफा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। जब यजीद को खत मिला कि कूफा में इमाम हुसैन के नाम पर बैत हो रही है, तो कूफा के अंदर इन हालात को देखकर यजीद गुस्सा हुआ। फौरन उसने मशवरा करने के लिए मुशीरों को बुलाया, सबने मशवरा दिया। बसरा का हाकिम इब्ने जियाद बड़ा सख्त है, उसको कूफा का हाकिम बना दिया जाए, वो हालात को कंट्रोल कर लेगा। यजीद ने फौरन बसरा के हाकिम इब्ने जियाद को खत लिखा कि तुम बसरा के भी हाकिम हो, कूफा के भी हाकिम हो, जाओ किसी तरह कूफा के हालात को कंट्रोल करो। इब्ने जियाद ने अपने भाई को बसरा में छोड़ा और कुछ लश्कर लेकर के कूफा की तरफ चल पड़ा और इधर कूफे वालों को इंतजार था। हजरते मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया है, अब इमाम हुसैन आने वाले होंगे। उधर इब्ने जियाद लश्कर लेकर के कादसिया पहुंचा, अपने लश्कर को कादसिया में छोड़ दिया, 20 फौजियों को लिया और मक्का वालों का, हिजाज वालों का कपड़ा पहनकर मगरिब और ईशा के दरमियान हिजाज वाले मक्का वाले रास्ते से कूफा की तरफ आने लगा। लोग समझ गए ऐसे वक्त के अंदर इस हिजाजी लिबास में हिजाज के रास्ते से इमाम हुसैन के अलावा कोई नहीं आ सकता। सब लोग बाहर निकल आए इमाम हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए। वो अपना चेहरा छुपा करके रखा था, सब नारा लगा रहे, आए इब्ने रसूल मरहबा, आपका खैर मकदम है, खुश आमदेद खुश आमदेद। इब्ने जियाद चुप रहा, कुछ न बोला, वो चेहरे देखता रहा। लेकिन फिर मजमा इतना ज्यादा हो गया, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इब्ने जियाद के साथ में चल रहे एक शख्स ने खड़े होकर के ऐलान किया, सब रास्ता छोड़ दो, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये कूफा के हाकिम बन करके आए हैं, इब्ने जियाद है। जब इब्ने जियाद का नाम सुना, सारे काफले वाले छट गए, सारे शहरी लोग छट गए और चंद लोगों के साथ में इब्ने जियाद गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुआ। सुबह का वक्त हुआ, सारे कूफा के लोगों को उसने गवर्नर हाउस में जमा किया और जमा करने के बाद में कहा, इमाम हुसैन के नाम पर तुम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर रहे हो, तुम फौरन उनकी बैत को तोड़ो और उनको मेरे हवाले करो, नहीं तो फिर तो तुम्हारे साथ में जो बर्ताव करूंगा वो तारीख के अंदर इबरत का निशान बन करके रह जाएगा। अब कूफा वालों ने हालात को बदलता हुआ देखा और जैसे ही मजमा बर्खास्त होने लगा, इब्ने जियाद ने कहा, हर कबीले के बड़े बड़े सरदार को गिरफ्तार कर लिया जाए। सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मक्का वालों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गया, ये कूफा के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गया। और कूफा के अंदर जब तब्दीली आई ना, अल्लाह अकबर, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फौरन मुख्तार का घर छोड़ा और हानी के घर पर मुंतकिल हो गए। अब इब्ने जियाद ने अपने गुलाम को बुलाया माकिल को, और बुलाने के बाद में कहा, माकिल ये 3000 दिरहम ले लो और जाके मुस्लिम बिन अकील को तलाश करो। अब वो घूमते घूमते मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद में एक मुहिब अहले बैत मुस्लिम बिन औसजा बैठे हुए थे। जाके कहने लगा, मैं शाम से आया हूँ, मुहिब अहले बैत हूँ, मैं ये नजराना लाया हूँ, हजरत इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील को नजराना देना है। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, इतने लोग बैठे मेरे पास क्यों आए हो? कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अहले बैत से प्यार करने वाले हो। अब उनके झांसे में आ गए, बोले हाँ ठीक है चलो। उनको लेकर हानी के घर पर चले गए, जो किसी को पता नहीं था। इब्ने जियाद का ये गुलाम रोजाना जाता था और दिन भर हालात का जायजा लेता था और जाकर के इब्ने जियाद को बता देता था। इब्ने जियाद ने हानी के पास में पैगाम भेजा कि मेरे दरबार में आओ। हानी को पता नहीं था कि मेरे हालात इब्ने जियाद को पता चल गए। जब हानी पहुंचे दरबार के अंदर, इब्ने जियाद को सलाम किया। इब्ने जियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा, अय हानी,
तुम अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को रोक करके रखे हो और मेरे खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता प्लानिंग कर रहे हो, हथियार तैयार कर रहे हो, फौजें तैयार कर रहे हो। हानी ने इनकार किया। फौरन इब्ने ज़ियाद ने अपने गुलाम माकिल को बुलाया, कहा ये मेरा गुलाम रोजाना तुम्हारे घर पे आता था, हालात का जायजा लेता था। जब माकिल को देखा हानी के होश उड़ गए। कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को अपने मकान से मैं रुखसत कर देता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा रुखसत करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। कहा मैं अपने मेहमान को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। हानी ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ भी तलवारें निकल करके चली आएंगी। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने कहा इनको मारा जाए। हानी को मारा गया, लहू लुहान कर दिया गया और उसके बाद जेल में डाल दिया गया। पूरे कूफा में शोर मच गया, हानी को शहीद कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। 12,000 हजरत हानी के कबीले के लोगों ने आकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। इब्ने ज़ियाद घबरा गया, उसने कादी शोरे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि जाओ और जाकर के हजरत हानी को देख लो और जाके बता दो मरे नहीं है, वो जिंदा है। जब कादी शोरे पहुंचे हानी के पास, इब्ने ज़ियाद का जासूस साथ में था। हानी ने कहा मेरे कबीले वालों से कहो अगर 10 लोग भी अंदर आ गए मैं बच जाऊंगा, लेकिन चूंकि जासूस साथ में था, काजी शोरे ने जाकर के कहा कि हानी खैरियत से हैं, वो शहीद नहीं हुए हैं। कबीले वालों ने सुना, इत्मीनान के साथ चले गए। लेकिन मुस्लिम बिन अकील को पता चला हजरत हानी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है। आप फौरन बाजार में निकल करके आए और आवाज लगा दी। आपकी एक आवाज पर कूफा का बाजार लश्कर से पट गया। 40,000 का मजमा जमा हो गया और पूरे गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। अच्छा मौका था, अच्छा मौका था। अगर इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते गवर्नर हाउस को फतेह करते और फिर यही लश्कर यजीद तक पहुंच करके उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचा देता। लेकिन इमाम मुस्लिम अदल इंसाफ चाहते थे। आपने तवक्कुफ किया, कुछ देर रुक गए, हालात का जायजा लेने लगे। इब्ने ज़ियाद ने मक्कारी की, जितने कबीलों के सरदार थे गिरफ्तार किए गए थे, सबको गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ा दिया और कहा अपने अपने खानदान वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, नहीं तो मैं उन्हें भी मरवा दूंगा और तुम्हें भी किले के अंदर कत्ल करवा दूंगा। सब के सब सरदार किले की छत पे चढ़ के अपने अपने रिश्तेदारों से कहने लगे तुम लोग छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मरवा देगा और किले के अंदर हमें भी मरवा देगा। अब एक एक करके कूफा वाले निकलना शुरू हुए। 40,000 का लश्कर छटना शुरू हुआ। मगरिब का वक्त हुआ। कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम बिन अकील जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, 500 मुक्तदी और नमाजी थे। जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा, पूरी कूफा की जामा मस्जिद खाली हो गई, कोई नहीं बचा। ये कूफा वालों की वफा थी। 150 चिट्ठियां लिख करके जिन्होंने बुलाया था सब चले गए। अब कूफा में सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा छा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ करके बाहर आए और कूफा की गलियों में जब चलने लगे, ऐसा लगता था कूफा वालों ने बेवफाई करने के साथ में जहां अपने दिल के दरवाजे बंद किए थे, वहीं अपने मकानों के दरवाजे भी बंद कर दिए। खत लिख करके बुलाया था, जान कुर्बान करेंगे, माल कुर्बान करेंगे, आपके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज वही कूफा वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए अपने मकान का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि इनको पनाह दी तो हमारे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में घूम रहे, अपना गम नहीं है। मुस्लिम बिन अकील को सिर्फ एक गम सता रहा है। मैंने खत लिख दिया है इमाम हुसैन को कि हालात अच्छे हैं, चले आओ। इमाम हुसैन खुद भी आएंगे, अहले बैत के बच्चों को भी लाएंगे, खवातीन को लाएंगे जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया है। इमाम हुसैन और खानवादाए अहले बैत के साथ में वो क्या सलूक करेंगे। रह रह करके ये ख्याल इमाम मुस्लिम के दिल पर कचोके लगाने लगा। इमाम मुस्लिम घूमते घूमते जब एक गली में गए, तौआ नाम की एक खातून अपने मकान के दरवाजे पर बैठी अपने शराबी बेटे का इंतजार कर रही थी। इमाम मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिला दो। पानी लेने गई, पानी का प्याला ला करके दिया। इमाम मुस्लिम ने पानी पिया और जब वो प्याला अंदर रखने गई, इमाम मुस्लिम बाहर बैठ गए। खातून कहने लगी अब क्या हुआ, आप अपने घर क्यों नहीं जाते? का मेरा कोई घर नहीं है। का कौन हो? का मुसाफिर हो। का क्या नाम है? का मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। वो तौआ नाम की खातून मुहिब अहले बैत थी, फौरन उठी और कहा मेरे घर में तशरीफ लाए। हजरत इमाम मुस्लिम को घर में लेकर के गई, बिस्तर लगाया, खाना लगाया। इमाम
मुस्लिम को आराम करवाया, लेकिन इमाम मुस्लिम को नींद कहाँ आने वाली थी, रह रह करके ख्याल आ रहा था इमाम हुसैन का और उनके खानदान वालों का, रह रह करके ख्याल आ रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। और उधर आलम यह हुआ, रात का जब वक्त हुआ, उसका शराबी बेटा आया, उसने देखा कि मेरी माँ बार बार उसी कमरे में जा रही है, उसी कमरे में जा रही। कहा माँ है क्या? माँ ने कहा बेटा आज हमारी किस्मत चमक गई, आज तो इमाम हुसैन के भाई हमारे घर पे आए हैं। अब वो शराबी बेटा पहले ही सुन चुका था, जो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करेगा बड़ा इनाम मिलेगा, दुनिया का लालची रात ही में प्लान बनाने लगा। सुबह का वक्त हुआ, मोहम्मद बिन अशअस के बेटे को जाके कहता है, जाकर के अपने बाप को बताओ इब्ने जियाद को खबर दे दे मुस्लिम बिन अकील हमारे घर पे हैं और मेरा इनाम मुझे ला करके दे। जब इब्ने जियाद को खबर की गई तो मोहम्मद बिन अशअस के साथ में एक लश्कर दे करके इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। जब घोड़ों की आवाज गली के अंदर आई, मुस्लिम बिन अकील समझ गए मेरी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। आपने तलवार हाथ में ले ली। यजीदी जब मकान में दाखिल हुए, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने मुकाबला किया और जानते ही हैं ये अहले बैत नबूवत का वो घराना है जो कभी किसी से डरता नहीं है, इनकी रगों में खून है उस मुकद्दस खानदान का। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम ने जब जंग शुरू की, आपका एक होठ भी जख्मी हो गया, लेकिन वो जालिम आप पर काबू न पा सके और गीदड़ों की तरह भागने लगे और सब के सब मकान की छत पे चढ़ गए और आग के गोले बना बना करके इमाम मुस्लिम पर फेंकने लगे। इमाम मुस्लिम समझ गए ये नामर्द लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आप मकान से निकलकर गली में आ गए और गली में मुकाबला करने लगे। मोहम्मद बिन अशअस ने कहा अगर तलवार अंदर कर लो तो तुम्हारे लिए अमान है। इमाम मुस्लिम बहुत थक गए थे, दीवार के सारे खड़े हो गए। कहा मेरे लिए अमान है? कहा हाँ अमान है। सब ने कहा अमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को नयाम में किया और फिर आपको घोड़े पर या ऊंट पर सवार किया गया और जैसे ही रवाना किया आपकी तलवार को ले लिया। आपने फरमाया तुम तो अमान दिए थे। अल्लाह अकबर। आप समझ गए अब मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है। आपको गवर्नर हाउस ले जाया गया। गवर्नर हाउस के बाहर कई लोग इब्ने जियाद के दरबार में जाने के लिए इंतजार में थे, वहीं पर रोक दिया गया। मोहम्मद बिन अशअस इब्ने जियाद को खबर देने के लिए गया और कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील को अमान दे करके ले आया हूं। इब्ने जियाद ने कहा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं भेजा था। इधर मुस्लिम बिन अकील बैठे हुए हैं, होठ जख्मी हो चुका है और खून के कतरे गिर रहे। पानी का मटका रखा था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे पानी पिला दो। एक यजीदी बोला तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक शख्स ने आगे बढ़कर कटोरे में पानी लिया। हजरत इमाम मुस्लिम को जब पानी का प्याला दिया, जैसे ही आपने लबों पे लगाया खून के कतरे पानी में गिरे। खून के कतरों की वजह से पानी लाल हो गया। आपने पानी गिरा दिया। दूसरा कटोरा दिया, वो भी लाल हो गया। तीसरा कटोरा दिया, उसमें आपके दो दांत टूट करके गिर गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने प्याला रख दिया। का लगता है अब दुनिया का पानी मेरी किस्मत में नहीं है, अब तो नाना जान के हाथों से जामे कौसर जाकर पीना नसीब होगा। हजरत इमाम मुस्लिम जब दरबार में पहुंचे, इब्ने जियाद को सलाम नहीं किया। इब्ने जियाद के सिपाहियों ने कहा तुम अमीर को सलाम करो। कहा अमीर अगर मुझे कत्ल करना चाहता है उसके लिए कोई सलाम नहीं है, और अगर मुझे कत्ल नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत सारे सलाम होंगे। अब उसके बाद में उनकी शहादत का जब वक्त करीब आया तो आपने कहा मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूं, और इब्ने साद वहीं पर दरबार में मौजूद था। इब्ने साद सुनने के लिए तैयार न हुआ। इब्ने जियाद ने कहा जाओ सुन लो। अब कोने में आप लेकर के गए। कहा मेरी 3 वसीयतें हैं। कूफा आने के बाद में मुझ पर इतना कर्ज हो गया है, मेरा कर्ज अदा कर देना। दूसरी वसीयत यह है इमाम हुसैन को मैंने खत लिखा है, हालात अच्छे आ जाना। आप खत लिखकर उनको बता दो यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ना आना। और तीसरी वसीयत यह है जब मुझे शहीद कर दिया जाए मेरे लाशे को दफन कर देना। ये आपने राज के तौर पर कान में बातें की थी, लेकिन हुकूमत का पिट्टू इब्ने साद इब्ने जियाद के सामने आपकी इन वसीयतों को बयान करता है। इब्ने जियाद कहता है कर्ज अदा करना तुम्हारी मर्जी है, चाहो अदा करो ना करो। इमाम हुसैन अगर इधर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आएंगे तो हम उनके साथ भी जंग करेंगे, और जहां तक इनकी लाश की बात है वो हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम इन्हें निशान इबरत बनाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए हुकूमत के खिलाफ निकलने वालों का अंजाम क्या होता है। अब उसके बाद इब्ने जियाद और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बातचीत हुई। ये जो बातचीत है ना, इससे पता चलता है कि अहले हक का वतीरा क्या होता है और अहले बातिल का तरीका क्या होता है। इब्ने जियाद कहने लगा कूफा में अमान था,
آپ آئے, آپ نے کوفہ کے حالات کو خراب کیا. مسلم بن عقیل نے کہا میں خود نہیں آیا, مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا. تیرے باپ نے لوگوں پہ ظلم کیا, شریعت کی حرمتوں کو پامال کیا, تب مجھے بلایا ہے. میں اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اب اس کے بعد وہ بدتمیزی پہ اتر آیا کہ تم شراب پیتے تھے مکہ کے اندر اور یہاں پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہو. آپ نے فرمایا تو شرابی ہے, الحمدللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے. کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. اس بدتمیز نے حضرت علی وغیرہ کی شان میں جب بدتمیزی کی تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو ڈٹ کر کے جواب دیا. اخیر کے اندر اس نے حکم دیا ان کو لے جاؤ گورنر ہاؤس کی چھت پر اور قتل کر کے ان کے لاشیں کو نیچے گرا دو. جب امام مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا اور گورنر ہاؤس کی چھت پہ جب آپ چڑھ گئے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ اور درود پاک کا ورد کرنے لگے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا, لاش مبارک کو اٹھا کر کے گلی کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا, نیچے کی طرف پھینک دیا گیا. اللہ اکبر, یہ تاریخ کربلا کا آغاز ہوا, تاریخ کربلا کا آغاز ہوا اور کربلا کا پہلا مسافر کوفہ سے چل کر جنت کی طرف روانہ ہوا. وہ ہانی جس کی شہادت کی خبر پر پورا کوفہ ہل گیا تھا, مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد میں انہی ہانی کو نکال کر کے لایا گیا, کہا انہیں بازار میں لے جا کے قتل کر دو. حضرت ہانی کو جب بازار میں سپاہی پکڑ کے لے جا رہے تھے, انہوں نے چلا کے کہا میرے قبیلے والے کہاں ہو, آؤ مجھے بچاؤ. لیکن پورے کوفہ میں خوف کا ماحول تھا, کوئی بچانے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور پھر کوفہ کے بازار میں حضرت ہانی کو شہید کر کے ان کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا گیا. یہ تاریخ کربلا کی دوسری کڑی ہے جہاں میں شہادت پی کر کے ہانی بھی جنت کے مسافر بن گئے. اور ادھر تو یہ شہادت پائے ہیں اور ادھر عالم دیکھو, جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی, اسی تاریخ کو یعنی ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو امام حسین مکہ سے نکل رہے ہیں. خط مل گیا تھا, حالات اچھے ہیں, چلے آؤ یہ آپ کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کریں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو تیار کیا. اب وہ نکل رہے ہیں مکہ سے, کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کون کون ہے؟ آپ کے 3 بیٹے ہیں. امام حسین کے ساتھ میں آپ کی 1 بیٹی ہے, آپ کی 2 بیویاں ہیں, آپ کے ساتھ میں امام حسن کے 4 بیٹے ہیں, حضرت علی کے 5 بیٹے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی ہیں, آپ کے 2 بھانجے ہیں, 1 بہن ہے. کل 82 افراد کا یہ قافلہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر کے روانہ ہو رہا ہے. اب جب روانہ ہونے لگے صحابہ کرام آ گئے, روکنے لگے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ نہ جائیں, میں آپ کی حفاظت کے لیے یہیں پر لشکر تیار کروں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر میرے امام نے کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ مینڈا ہوگا جو حرم کی حرمتوں کو حلال کرے گا, میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. کہا حضور آپ رک جائیں, میں آپ کی حفاظت کروں گا. کہا اگر میں بل میں بھی چلا گیا یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر آئے, کہا حضور آپ نہ جائیں. کہا نہیں مجھے جانا ہے. بوسہ لیا اور رخصت کیا. حضرت عبداللہ بن عباس آئے, کہا اگر آپ جا رہے ہیں تو ان بچوں کو تو نہ لے کر کے جائیں. میرے امام نے زبان حال سے کہا میں جاتا ہوں, بچوں کو بھی لے کر کے جاؤں گا تاکہ تاریخ کربلا مکمل ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ سے نکل کر کے جا رہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, کل میں نے بتایا تھا امام حسین نے 25 حج پیدل مدینہ سے چل کر کے مکہ کی طرف 25 حج فرمائے ہیں. اتنا بڑا حاجی جو پیدل حج کرتا ہو, حج کا موسم ہے, وہ مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. بات کیا ہے؟ جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے نا, کیا کیفیت ہوتی ہے وہاں پر. خانہ کعبہ کی ایک الگ رونق ہوا کرتی ہے, مطاف کی ایک الگ رونق ہوتی ہے, صفا مروہ پہ چہل پہل ہوتی ہے. ان دنوں میں تو مکہ میں ہر دن عید کا دن ہوتا ہے, ہر رات شب برات ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر عجیب دلکشی ہوتی ہے, حاجیوں کے لبوں پہ لبیک کا ترانہ, اور پھر وہ لوگوں کے دلوں کے اندر عبادت کا ایک عظیم جذبہ. نہ جانے کیسی کیفیتوں سے اس وقت حجاج کرام 2-4 ہوتے ہیں اور سب گویا کہ
زبان حال سے کہتے مقام وجد ہے دل کہ کوئے یار میں آئے, بڑے دربار میں پہنچے, بڑی سرکار میں آئے. لوگ تو وجد کر رہے ہیں, لوگ تو وجد میں مبتلا ہیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے اندر ایسے مقدس موسم میں آنا نصیب کیا, اور اتنا بڑا حاجی حج کے موسم کے اندر مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہا ہے. امام حسین کے دل کے اندر کیا کچوکے نہیں لگے ہوں گے؟ حج کی تمنا نہیں انگڑائی لے رہی ہوگی؟ امام حسین کے دل میں جب یہ خیال آیا ہوگا کہ حج چھوٹ رہا ہے, تو پھر وہاں سے مشیت نے پکار کر کے کہا تھا, حسین یہاں پہ لوگ اپنا حج ادا کریں گے مکہ میں, تمہارا حج تو کربلا میں ادا ہوگا. لوگ یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, تمہیں تو خیموں کا طواف کرنا ہے. یہاں پہ حجاج کرام جو ہے وہ احرام پہنیں گے, سفید احرام پہنیں گے, تمہیں تو شہادت کا سرخ احرام پہننا ہے. یہاں پہ حجر اسود کے بوسے لیے جائیں گے, تمہیں تو علی اصغر کے جو ہے وہ لاشے کے بوسے لینے ہیں. یہاں پہ صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوگی, تمہاری صحیح تو مکہ سے لے کر کے کربلا تک ہوگی. یہاں پہ جب لوگ اپنا حج ادا کریں گے تو جانوروں کی قربانی کریں گے, تمہیں تو اپنے نازوں کے پالوں کی قربانی کرنی ہے. یہاں پہ لوگ جب اپنا حج مکمل کریں گے تو اپنا سر منڈا کے حج مکمل کریں گے, تمہیں تو اپنا سر کٹا کے حج کو مکمل کرنا ہے. حسین یہاں پر تو لوگ نمازیں ادا کریں گے خانہ کعبہ کے سائے میں, تمہیں تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنی ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, بیت اللہ کے سائے نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ سے نکل رہے ہیں کوفہ کی طرف. بظاہر تو کوفہ کی طرف جا رہے لیکن حقیقتاً کربلا کی طرف جا رہے. امام حسین جب مکہ المکرمہ سے نکلے, آپ کے دو بھانجے اون اور محمد اپنے باپ عبداللہ بن جعفر کا خط لے کے آتے, کہتے امام آپ نہ جائیں, آپ رک جائیں, میں حاکم مکہ کے پاس جا رہا ہوں, آپ کے لیے امان لے کے آتا ہوں. امام حسین آگے بڑھے, تھوڑی دیر کے اندر حاکم مکہ کے بھائی کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن جعفر اون و محمد کے والد حضرت زینب کے شوہر آتے ہیں اور کہتے دیکھو حاکم مکہ نے آپ کے لیے امان لکھ کر کے دی ہے اور اپنے بھائی کو ساتھ میں بھیجا ہے. میرے امام نے کہا مجھے مت روکو, مجھے جانے دو. کہا حضور آپ اتنا ضد کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے نانا سے ایک وعدہ کیا ہے, میں اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں. کہا حضور وہ خواب بتا دے. کہا میں وہ خواب اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک اپنے مولا سے نہیں مل جاؤں گا. امام حسین جا رہے, لوگ روک رہے ہیں. میرے امام نے کہا میرے غم گسارو, میرے یارو, مجھ کو نہ روکو, مجھ کو جانے دو, نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں زمانے پر وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھرانے کی آن جاتی ہے, لوگوں تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, فرزدق شاعر ملا, اس نے کہا امام آپ نہ جائیں, ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ ہے اور کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے. میرے امام نے کہا اگر میں نہیں گیا تو پھر مجھے یہاں پہ گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن حقیقت کے اندر امام حسین کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں, 2 قدم نہیں چلنے کی طاقت مجھ میں, عشق کھینچے لیے جاتا ہے, میں کیا جاتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے, سب روک رہے, سب کہہ رہے, سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا, اے حسین ابن علی, اے سبت پیمبر مت جا, بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. کہتے سب رہ گئے, اے دین کے سرور مت جا. میرے امام جا رہے, شہادت آواز دے رہی ہے, شہادت نے گھونگھٹ اٹھا کر کے میرے امام کو بلایا ہے اور امام شہادت کا سرخ جوڑا پہننے کے لیے آج حج کا احرام چھوڑ کر کے آج نکل رہے کربلا کی طرف. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے, میرے امام نے اپنے غلام کو مقام حاضر کے اندر حضرت قیس کو خط دیا, کہا جاؤ کوفہ والوں کو یہ خط دے دو. اس میں آپ نے لکھا کوفہ والوں میں یہاں سے نکل چکا ہوں, تم لوگ اپنے معاملات درست کر لو, میں کوفہ پہنچ رہا ہوں. حضرت قیس جب خط لے کر کے نکلے ہیں اور جگہ جگہ ابن زیاد نے پہلے ہی چوکیاں بنا دی تھی, حضرت قیس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچایا گیا, ابن زیاد نے کہا اوپر چڑھ جاؤ گورنر ہاؤس پر اور امام حسین اور امام حسن حضرت علی کی شان میں بدتمیزی کرو. حضرت قیس غلام امام حسین کو جب اس گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھایا گیا, چھت پہ چڑھ کے
करके हजरत अली की शान बयान की, इमाम हसन की शान बयान की, इमाम हुसैन की शान बयान की, इब्ने जियाद बदबक की वो बुराइयां की। जब ये सब सुना तो वो आग बबूला हुआ और उनके लाश मुबारक को गवर्नर हाउस की छत से गिरा करके उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तारीख करबला की तीसरी कड़ी आगे बढ़ रही है और तारीख करबला के मुसाफिर एक एक करके जन्नत के अंदर पहुंच रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन और आपके रफका को अभी करबला के हालात बज़ाहिर मालूम नहीं है, ये सब के सब निकल रहे हैं और तारीख करबला आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह कल की महफिल के अंदर वाक़यात करबला और तारीख करबला को तफसील के साथ बयान किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।